Dear students, Assalamu alaikum. Today I would like to discuss about your experiment number 11 for your electric circuit analysis 1 lab, and its title is calculation of total impedance in RL and RC circuits using multisim. Now particularly in this lab I'm talking about the series RL and RC circuits instead of parallel. The parallel thing will be discussed later on. In this lab I will be teaching you about that what is the total impedance and how you are going to actually calculate it, and then you are going to verify it using the multisim, using different types of tools on the multisim. Now impedance is a term that appears frequently in AC analysis. Particularly in AC analysis it has the same structure and same concept as that of resistor, but however in AC circuits the behavior of the total impedance is a bit different. Now why is it different? It is because the presence of reactive components in any AC circuit poses some different types of behaviors, due to which we had to go to another definition of the total impedance in an AC circuit. Now the impedance is actually, before that I need to tell you about what is reactance. Now reactance is actually an opposition posed by a reactive component within an AC circuit and to the flow of current, and these reactive components have different behaviors which depend mostly on the input frequency of the AC circuit, and the unit of measurement of these reactances is the same as that of the resistance, that is ohms. And impedance is what it is, and an overall picture of the resistance of an AC circuit, and it is a combined opposition posed by resistances or any kind of reactive components present in an AC circuit and to the flow of current, and this is denoted by the symbol Z, and it is measured in ohms. Now I have presented here some basic formulas that most of you must have been familiar with, but I would like to explain about the circuits that you need to implement on multisim. So these are the circuits, the series RL circuit and the series RC circuits, and you will be using in AC analysis to find out the total impedance of these circuits. Now the first step is that I will explain about what is a series RL circuit. This is going to be like this. This is a series RL circuit, and it has an input supply, an AC supply, and we are going to analyze the behavior of this circuit and find out its total impedance. Now at the input supply we are not going to use the typical AC supply at which is available at our domestic appliances, and we are going to utilize a function generator which is going to be which is going to appear as an AC supply, and I'm going to represent it as FG for its abbreviation. Now this function generator can be variable, and we can set its input values in the form of peak voltages or peak to peak voltages, and I'm going to set its peak voltage to 10 volts peak, and also I'm going to set its frequency to 100 Hertz initially, right? And similarly I have this resistance R and this inductor L,
and I'm going to set the values of resistance to 1 kilo ohm and reactance to 1 millihenry. Now the next thing we know is that we can represent the overall impedance using an impedance triangle. This is an impedance triangle, which is basically a right angle triangle. On its x-axis we represent a resistive component, and the resistive component lies at the 0 as a real vector, and the other vector, that is xl, is going to appear at the right angle of this, at 90 degrees of this, and z appears as the resultant of both of these vectors, which is equal to r plus jxl, right? So I will get a few formulas from here. This is the phase angle or theta, which is actually representing the phase difference between the current and the voltage source. Now there are different forms to represent this phase difference. So I will show here like this, that xl is going to be the reactance of this component L, and this will be represented by this formula as 2 pi fl. So I already know the values of L and R and F, of course, so I'm simply going to plug in the values here and find out what's XL. And this is what? This is your inductive reactance. And what does this theta represent? This theta, if I try to take a tan inverse of XL over R, then this theta is representing yes, this is the phase difference between voltage and current. Now why should there be a phase difference between voltage and current? Because we already know that inductor opposes current flow, right? So if we try to reduce some further explanations from this statement, it means that the output, if we try to draw the waveforms somehow like this, that if we have this voltage waveform representing like this, and it starts from the origin, and we have the current waveform being representing at the same this is let me rewrite it as amplitude. This is actually amplitude. It could be amplitude of both the voltage and the current. So if I have another waveform for current, so this should be a lag between the voltage and current. Now this, how much this lag should appear, this should be equal to approximately 90 degrees ideally. Ideally इस फेज डिफरेंस को या इस फेज शिफ्ट को 90 डिग्रीज होना चाहिए, बट हाउएवर दिस इज़ नॉट द केस, देन एक्चुअल थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आता रहता है, बट हाउएवर शुड बी क्लोज टू 90. बट फॉर दिस पर्टिकुलर लैब हम वोल्टेज और करंट के दरमियान वेव फॉर्म नहीं देख सकते, बिकॉज हमारे पास जो टूल्स हैं दे डू नॉट अलाउ अस
हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं एंड ऑसिलोस्कोप जो है वो आपको सिर्फ वोल्टेज वेव फॉर्म्स शो करता है, इट डज़ नॉट शो करंट वेव फॉर्म। तो करंट वेव फॉर्म के लिए हमें एसी एनालिसिस या स्वीप एनालिसिस करना पड़ता है, सो आई विल स्किप दैट पार्ट एंड लीव इट अप टू यू। तो हम अभी तक हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उसको हम देख लेते हैं। सिमिलरली अनदर फार्मूला डिराइव फ्रॉम जो हम इस इम्पिडेंस ट्राइंगल से हम डिराइव कर सकते हैं, which is the overall impedance Z equals R plus JXL, and if we try to find out its amplitude, this is going to be R square plus XL square whole under root, and theta हम already find out कर चुके हैं, and this is the other equation, and third equation है XL equals 2 pi FL. Now ये तीन equations आपकी कौन सी हैं? These are going to be your theoretical work जो कि आपने background पर कर लेना है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि दैट व्हेन यू ट्राई टू एनालाइज योर सर्किट इन मल्टीसिम, तो आपको आइडिया हो जाएगा दैट आप क्या चीज़ इसमें से बिल्कुल सही से वेरीफाई कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये होगी दैट ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है थीटा की, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। वाई? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि oscilloscope cannot show this phase difference between voltage and current, because current waveform वो show ही नहीं कर सकता, voltage waveform show कर सकता है। But however we can observe another interesting thing on oscilloscope. Another thing that you need to know is that अगर हम input and output voltage waveforms को observe करें, हम सिर्फ voltage waveforms को इस वक्त देख रहे हैं, not the current waveforms, तो उसके लिए हम देखते हैं कि आइडियली कैसे होता है कि इफ़ वी हैव दिस इनपुट वोल्टेज एज Vs, तो आउटपुट पर अगर वोल्टेज वेवफॉर्म जो है आउटपुट मींस कि हमारे पास इनपुट पर हमने फंक्शन जनरेटर पर रजिस्टर के ऊपर अप्लाई की हुई है वोल्टेज, एंड आउटपुट हम इंडक्टर के ऊपर देख रहे हैं। तो अगर वो लीडिंग आ रही है, सो दिस मीन्स दैट हमारे पास सर्किट के अंदर इंडक्टिव कंपोनेंट है एंड दैट इज़ द लार्जर कंपोनेंट। तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं वेवफॉर्म को देखते हुए दैट दिस इज़ एक्चुअली एन इंडक्टिव कंपोनेंट और इंडक्टिव सर्किट। अगर समहाउ वोल्टेज वेवफॉर्म लैग कर रही है इनपुट से, सो वी कैन डिड्यूस दैट दिस इज़ एक्चुअली अ कैपेसिटिव सर्किट। तो हम इसके अंदर ये देखेंगे भी प्रैक्टिकली दैट वाकई ऐसा होता है that if we try to implement a series RL circuit, that then VL is actually leading voltage, and in case I try to implement using a series RC circuit, then VC is actually the lagging voltage. So let's see that हम इसको अपने सर्किट को रीडिज़ाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीसिम। तो मल्टीसिम के लिए मैं सेम वही सर्किट लेती हूँ which is RL series, and now I'm trying to connect a function generator here. This is a function generator and इसके अंदर तीन लीड्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्राउंड एंड नेगेटिव। नेगेटिव किस पर्पस के लिए? आई विल सजेस्ट इट आप ट्यूटोरियल को एक दफ़ा विजिट कर लें तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ ग्राउंड। तो हम इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, राइट। एंड एक और चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली ये चीज़ें शायद नहीं प्रैक्टिकली देख सकेंगे जिस तरह से हमने इम्पीडेंस प्रीवियस थियोरेटिकल केस में फाइंड आउट की। तो उसके लिए हमें न्यू फार्मूलाज डिज़ाइन करने होंगे। न्यू फार्मूलाज का मतलब यह है कि हम थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर रहे हैं इन द प्रीवियस फार्मूलाज। उसके लिए हम क्या करते हैं कि Z इज़ एम्पलीट्यूड इज़ गोइंग टू बी Vs ओवर I, राइट। तो I is what? I is actually the current flowing through
दिस सर्किट. तो सिंस इट इज़ अ सीरीज सर्किट तो हम अज्यूम कर सकते हैं दैट AC करंट is going to be the same in all of this circuit. Similarly हमारे पास अगर XC है, XL हमने फाइंड आउट करना है, so this is going to be what? This is going to be VL over I. बोथ आर रेजिस्टेंसेस एक्चुअली, लेकिन VS जो है ये हमारे पास टोटल जो हमने इनपुट के ऊपर अप्लाई की हुई है, VRMS जो हमने इनपुट पे अप्लाई की हुई है. प्रीवियसली तो मैंने आपको मेंशन किया कि दैट इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट्स पीक जो हमने फंक्शन जनरेटर पर सेट की हुई है. बट हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, वी नीड टू कन्वर्ट दिस 10 वोल्ट्स पीक इनटू VRMS वैल्यू. सो हमारे पास अब न्यू फार्मूलाज दो आ गए हैं. वन इज़ Z एंड अनदर इज़ दिस. एंड I क्या होगा, I को हम मेजर करेंगे. मेजर करने के लिए क्या मेथड है? ऑब्वियसली वी नीड टू अप्लाई DMM इन सीरीज टू इट. इसको हम XMM बोलते हैं. एंड इसको हम सेट कर देंगे AC करंट पे, राइट. तो यहाँ से हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया. सिमिलरली अनदर थिंग दैट यू नीड टू अप्लाई हियर इज़ एन ऑसिलोस्कोप. दिस इज़ एन ऑसिलोस्कोप. एन ऑसिलोस्कोप पे चैनल 1 है, चैनल 2 है. तो दोनों के साथ दो लीड्स लगी हुई हैं. फर्स्ट जो लार्जर लीड है इसको हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर हम वोल्टेज देखना चाह रहे हैं. सो हमने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखनी है, वोल्टेज वे फॉर्म ऑब्ज़र्व करनी है. तो हमने इंडक्टर से पहले इसकी लीड लगा दी. सिमिलरली हमने वोल्टेज देखनी है इनपुट के ऊपर. तो हमने एक लीड पहले लगा दी रजिस्टर के, और सेकंड लीड्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी योर ग्राउंड्स. तो आप बेशक इकट्ठा एक ही ग्राउंड इसी ग्राउंड के साथ लगा दें या अलग अलग लगाना चाह रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो योर अप टू यू. तो आपने फंक्शन जनरेटर जब लगा लिया तो उसके बाद अब आपने देखना है कि चैनल 1 के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा आपका आउटपुट वेव फॉर्म एंड चैनल 2 के ऊपर डिस्प्ले होगा आपकी इनपुट वेव फॉर्म. तो जब आपने ये देख लिया तो आपने ऑब्ज़र्व करनी है XMM के ऊपर करंट की क्या वैल्यू आ रही है. दिस विल बी योर I. एंड सेकेंडली हमने फंक्शन ऑसिलोस्कोप की जो वेव फॉर्म्स हैं वहाँ से हमने ऑब्ज़र्व करनी है VL की वैल्यू एंड VS की भी वैल्यू हमने ऑब्ज़र्व करनी है, सो दैट हम इन दोनों फार्मूलाज़ को यूज़ कर सकें. तो मैंने यहाँ पर इसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हुए एक वेव फॉर्म RL सर्किट की जनरेट की है. दिस इज़ अ सीरीज़ RL सर्किट वेव फॉर्म. द ब्लू वन जो ब्लू है ये आपकी शो कर रही है VR या VL हम इसको कह सकते हैं. एंड सिमिलरली जो आपके पास रेड वन है ये VL शो कर रही है. अब आपको फेज़ डिफरेंस किस तरह से देखना है? फेज़ डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर आपको दो मार्कर्स नज़र आ रहे हैं. these one is yellow and other is blue. दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा ग्रीन नज़र आ रहा है. सो यू सिंपली हैव टू ड्रैग बोथ ऑफ दीज मार्कर. मैंने एक मार्कर को अप्लाई कर दिया है एट द बेस ऑफ ब्लू वन, जहाँ से ब्लू स्टार्ट हो रही है, ब्लू वेव फॉर्म जहाँ से स्टार्ट हो रही है मैंने वहाँ पर एक मार्कर प्लेस कर दिया है. सिमिलरली जहाँ से मुझे लग रहा है कि मेरी रेड वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है वहाँ पर मैंने इस ब्लू वाले मार्कर को एडजस्ट कर दिया है. तो अब मेरा फेज़ जो टाइम डिफरेंस शो कर रहा है, दिस इज़ माई टाइम डिफरेंस बीइंग शोड हियर, ये नेगेटिव में शो कर रहा है. नेगेटिव में शो करने का मतलब ये हुआ that this red waveform is actually starting
बिहाइंड बिफोर दिस ब्लू वेव फॉर्म, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट समहाउ यहाँ होगा। तो अगर आप मार्कर यहाँ प्लेस करते तो ये पॉजिटिव शो करता। सो दिस मीन्स दैट वी एल इज लीडिंग वी आर। सो इस बिहेवियर से हमें नज़र आ रहा है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ तो हमने देख ली कि वी एल इज़ लीडिंग वी आर। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ आपने देखनी है, दैट वी एल का एम्पलीट्यूड क्या है। तो चैनल ए के ऊपर वी एल शो हो रहा है, चैनल ए के ऊपर हम वी एल शो कर रहे हैं। तो इसके स्केल हमने सेट किया हुआ है 10, स्केल इज़, ये वी एल के लिए हम देख रहे हैं, स्केल इज़ 10 मिली वोल्ट्स। एंड हम ये देख रहे हैं कि ये कितने टाइम में या कितने ब्लॉक्स में अपना एम्पलीट्यूड कंप्लीट कर रहा है। ये जो बिगर बॉक्स है, ये दिस इज़ वन लार्ज बॉक्स, ये एक डिवीज़न है। सो इसका मतलब कि रेड वाली जो वेव फॉर्म है ये वन लार्जर बॉक्स तो कंप्लीट कर ही रही है, बट थोड़ा सा ये अपर पोर्शन भी कंप्लीट कर रही है। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4 डिविजन्स। सो हम वी एल का मैग्नीट्यूड या वी एल का एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 मिली वोल्ट्स। तो जो भी आंसर आएगा दिस विल बी योर वी एल। तो वी एल आपकी थियोरेटिकली या आपके जो ऑसिलोस्कोप से आपने ऑब्जर्वेशन की उसके अकॉर्डिंग इतनी आ रही है। तो इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका होगा, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें, दैट इसी सर्किट के अंदर एक और DMM प्लेस करें, एक और DMM प्लेस करें, दिस इज़ अनदर DMM, एंड इस DMM को आप इंडक्टर के अक्रॉस प्लेस कर दें। सो वट एवर वोल्टेज इज़ बीइंग शोड हेयर, दिस इज़ योर VL। सो आपने एक दफ़ा DMM से भी मेजर कर लिया और एक दफ़ा ऑसिलोस्कोप से भी कैलकुलेट करके देख लिया। तो अगर बोथ वैल्यूज़ करीब करीब की आ रही हैं, सो दिस मीन्स दैट आपके पास DMM जो है ये सर्किट बिल्कुल ठीक से ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नाउ लेट्स मूव शिफ्ट टू अनदर सर्किट, दिस इज़ सीरीज़ RC सर्किट, जिसके अंदर हम फंक्शन जनरेटर से ये इनपुट दे रहे हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है, दिस इज़ द सीरीज़ RC सर्किट्स oscilloscope waveforms. The blue one is what VR and red one is VL. तो अभी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि VL जो है ये एक्चुअली थोड़ा सा लैग कर रही है VR से, क्योंकि मैंने दोनों मार्कर्स प्लेस किए हैं एंड ये मुझे पॉजिटिव डिफरेंस शो कर रही है। सो दिस मीन्स दैट VL जो है वो VR के थोड़े से टाइम के बाद स्टार्ट हो रही है। इसका लैग थोड़ा सा कम है बेशक, बट सम हाउ वी कैन सिंपली से दैट VL इज़ लैगिंग VR। सिमिलरली इसके अंदर फार्मूला क्या होगा, दिस इज़ नॉट VL, I forgot to mention here, this is VC, because this time our circuit has been changed, which this is the capacitive circuit, and this time our impedance and formula will be VS over I, formula same रहेंगे, and XC is equal to 1 over 2 pi FC, which means that इसके अंदर inverse relationship है। inverse relationship का मतलब ये हुआ कि this is my VC and this is XC, and somehow not this,
this is frequency and this is my XC and somehow मेरी frequency increase होने से XC की value जो है वो reduce हो रही है, unlike the previous case जब हमने inductive reactance को observe किया. Another formula that we can utilize is जो कि आपने practically use करना है in the form of current. तो हम XC को use किस तरह से करेंगे? This is equal to VC over I. यानी VC को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने प्रीवियस केस में किया कि आप इसको जो चैनल की हमने स्केल है उसको और कितने डिविजन्स में ये कंप्लीट हो रही है. पीक, सिर्फ पीक हम देखेंगे कि कहाँ यहाँ से यहाँ तक, हम पीक टू पीक नहीं देख रहे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सिर्फ पीक वैल्यू को देखें. अगर पीक टू पीक करेंगे तो आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको 2 का फैक्टर भी बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा. सो दिस कंक्लूड्स टुडेज़ लेक्चर and I hope that you have understood some basic concepts, and this is the table that you need to follow. Now this is the आपको VS नोट करना है. सीरीज RC और RL सर्किट का बिल्कुल सिमिलर टेबल है, थोड़ा सा डिफरेंस है. आपने इनिशियली जो वैल्यूज़ यूज़ की आपने उनको नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे, राइट. एंड आफ्टर दैट आपने VS इनपुट के ऊपर जो आपने RMS वैल्यू जो कि आपने DMM लगाकर चेक करनी है. अगर DMM आप नहीं भी लगाते तो आप V पीक जो आपने सेट की हुई है उसको यूज़ करते हुए RMS वैल्यू कैलकुलेट कर लें, विच इज़ 7.07 मल्टीप्लाई बाय V पीक. एंड उसके बाद आपने AC करंट जो नोट किया DMM लगाकर वो आपने यहाँ पर नोट करना है. सिमिलरली VR वो आपने नोट डाउन करनी है, ये भी आपने DMM लगाकर नोट करनी है. ये आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं और इसको आपने VL भी मेजर करके लिख दी. आप बेशक DMM से मेजर करें या बेहतर तरीका ये है कि आप DMM से मेजर करके लिखें, बिकॉज़ उसके अंदर जो सब्जेक्टिव डिफरेंस नहीं होगा, आपकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आएगी. हाउएवर अगर आप ऑसिलोस्कोप से ऑब्जर्व करके लिख रहे हैं तो ऑसिलोस्कोप के अंदर सिंस इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर तो उसके अंदर हर इंसान की जो है ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी फ़र्क आ सकती है. सो दैट मीन्स उसके अंदर 100% एक्यूरेसी शायद ना आए. सो ऑसिलोस्कोप से आपने सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड यू हैव टू वेरीफाई इट दैट ऑसिलोस्कोप से आप जो देख रहे हो वो DMM से भी आ रही हैं एग्जैक्टली या नहीं आ रही. आपने ये मेजर्ड वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली. आफ्टर दैट आप कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो आपने प्रीवियस फार्मूलाज यूज़ किए थे वो आपने यहाँ पर यूज़ करने, राइट. और थीटा की वैल्यू हम ऑसिलोस्कोप से नहीं देख सकते, इसको आप सिर्फ कैलकुलेट करेंगे. एंड फाइनली दिस इज़ आपने अगर रीट्रेस करना है ये कॉलम अगर आप फिल ना भी करें तो इट डजेंट मैटर, बट हाउएवर बाकी सारे कॉलम्स दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू फिल ऑल ऑफ दीज. सिमिलरली RC सर्किट का भी सिमिलर स्ट्रक्चर, यू हैव टू फिल दिस. नाउ lab tasks are very clear and you need to go through all of this lecture if you need to understand in detail, and I hope that we can discuss about this in later lectures as well. I'm going to end this lecture now. Allah Hafiz.